Sairam children, today we are going to start next chapter, that is experiments with water. पानी के साथ प्रयोग. जैसा कि आप सब जानते हैं, we already discussed about the water, importance of water, how can we save and conserve water, and how can we allow water to seep into the ground. Water is a wonderful liquid. हम सभी बहुत सारे चीजों में, बहुत सारे कामों में पानी का प्रयोग करते हैं. And while doing these work, we can do many experiments also. Have you seen when you go to bath and you fill your bucket with water and you use a mug, and when you keep the mug upside down, ulta karke, and you press it on water, तो you will see, जब हम उसको उल्टा करके पानी पर दबाते हैं तो उसमें पानी नहीं जाता है. But when we tilt the mug or any glass or bottle of plastic, we observe that bubbles are coming out and water enters inside the mug or bottle or glass. When we keep the mug on the surface of water, it floats. ये पानी के ऊपर तैरता है. And when we fill the mug with water, it sinks. ये डूब जाता है. In today's class, we'll discuss about float and sink. आपने कई चीजें देखी होंगी जो पानी के ऊपर तैरती हैं, और आपको ये भी पता होगा कि बहुत सारी चीजें पानी में डूब जाती हैं. कौन सी चीजें पानी में तैरती हैं, कौन सी चीजें पानी में डूब जाती हैं, ये हम देखेंगे. लेकिन आपका खुद का भी एक एक्सपीरियंस है. And all of you know that wood float on the surface of water. लकड़ी पानी के ऊपर तैरती है. लेकिन ऐसी बहुत सारी और भी चीजें हैं जो पानी के ऊपर तैरती हैं. कई बार किसी चीज का पानी में डूबना या तैरना इस बात पर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से पानी के सरफेस पर रख रहे हैं. So first see what is given in our chapter about the experiment with water. You are able to see the text, and the first subtopic is what floats, what sink. Aisha was waiting for dinner. Today Ammi was making her favorite food, puri and spicy potatoes. All of you like to eat puris, and most of the children like to eat potatoes vegetable. Aisha watched as her mother rolled out the puri and put it in the hot oil. She saw that at first the puri sank to the bottom of the pan. As it puffed up, the puri came up and started floating on the oil. One puri did not puff up and did not float like the others. On seeing this, Aisha took some dough and rolled it into a ball. She flattened it and put it in a bowl of water. It sank to the bottom and stayed there. Quite interesting. आप जब किचन में अपनी मदर को काम करते हुए देखते हैं कि किस तरीके से वो पूड़ी बनाती है, और जब पूड़ी को रोल करती हैं और उसके बाद गरम ऑयल में डालती हैं, तो पहले वो नीचे बैठ जाती है,
जब वो नीचे बैठ जाती है, लेकिन कुछ समय बाद वो the puri came up and started floating on the oil. पूरी पहले नीचे जाती है, उसके बाद वो ऊपर आती है और तैरने लगती है। हमने ये भी देखा है, जब आपकी मदर रोटी बनाती है और तवे पे रखती है या तवे पे रखने के बाद वो फ्लेम पर रखती है तो वो फूल जाती है। ये हवा कहाँ से आती है? सोचिए जरा। क्योंकि जब आपकी मदर आटे में आटे को नीट करती है, उसमें पानी मिलाती है, यही पानी evaporate होता है. This water present in dough evaporates, and it just that vapor make it puff up. Now, what is the purpose of talking about all these? Our purpose is to start thinking what happen if. Children, I would like to tell you one very important thing. Consider your kitchen as a lab, as an experimental lab. I'm not asking you to do it, anything. Just watch, observe. Lots of experiments are taking place inside the kitchen. Physical reaction, chemical reaction, biological reaction. We'll discuss more experiments related to kitchen later. But now we have to think. Aisha put a puffed puri in a bowl of water. Would it sink or float? उसने एक फूली हुई पूरी पानी में डाली, क्या वो तैरेगी या सिंक हो जाएगी, डूब जाएगी? एक सजेशन है आपको कि बहुत जल्दी कंक्लूजन पर मत पहुंचिए। कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, जो कि बहुत आसान है और हम कर सकते हैं। और आप लोग वाटर से रिलेटेड सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन, यू पुट अ स्टील प्लेट ऑन वाटर, वुड इट सिंक और फ्लोट? व्हाट वुड हैपन टू अ स्पून? अगर आप एक स्टील के प्लेट को पानी पर रखते हैं तो क्या ये डूबेगी या तैरेगी? और जब स्पून पे रखते हैं तब क्या होगा? Would the cap of plastic bottle sink or float on water? प्लास्टिक बॉटल पानी में डूबेगी या तैरेगी? In the evening, Aisha went for a bath and she had just come out when her mother called, Aisha, you have dropped the soap in the water again. उसने क्या किया? पानी में सोप डाल दिया. Take it out and put it in a soap case. Aisha was in a hurry and soap case fell out of her hand. It started floating on water. Aisha gently put the soap in the soap case and she saw that case continue to float even with the soap in it. Quite interesting. आप एक सोप केक को अगर पानी में रखते हैं तो क्या वह डूब जाता है? लेकिन पहले आप सोप केस रखिए जो प्लास्टिक का होता है जिसमें हम अपना साबुन रखते हैं. What Aisha found, soap case was floating on the surface of water. She gently put the cake, soap cake, in the case. उसने क्या किया? तैरते हुए सोप केस पर धीरे से सोप रख दिया, साबुन रख दिया. And what she found, what she saw, the case, soap case, continued to float even with the soap in it. वो सोप केक जो है वो अभी भी तैर रहा है जबकि उसके अंदर साबुन है. Have you seen that something float on water while others sink? Think how this happens.
आपको सोचना ही है ये क्यों होता है। सोचिए और फिर से सोचिए। डोंट स्टॉप द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। हियर इज अ पोयम। The poem here raises such questions. Why or why not? Why? Oh, why? A wooden float, लकड़ी की नाव, कागज की नाव तो आपने बहुत चलाई होगी। ये कागज की नाव जब पानी पे चलाते हैं और पानी में कभी कभी ये डूब भी जाती है जब कागज ज्यादा गीला हो जाता है, और कभी कभी लंबे समय तक तैरती रहती है। Think over it. A wooden boat in water will float, but a needle will sink. एक लकड़ी की नाव पानी में तैरती है लेकिन एक सुई डूब जाती है। Why does this happen? Let me think. ऐसा क्यों होता है? मैं सोचता हूं, आप भी सोचिए। एन आयरन शिप, एक लोहे का जहाज, एन आयरन शिप विल ऑल्सो फ्लोट दो इट्स मच हैवियर देन बोट। लोहे से बना हुआ जहाज, शिप भी पानी पर तैरता है जबकि यह बोट से बहुत ज्यादा भारी होता है। बट अ निडल, लाइट एज अ लीफ, थिन एज ए पेन, विल सिंक राइट इन। लेकिन एक छोटी सी निडल जो कि पेड़ की पत्ती की तरह हल्की होती है, एक पिन की तरह पतली होती है, वो पानी में डूब जाती है। Why does this happen? Let me think. Do this and find out. And when you do this, write your observation in the table and discuss with your friends and teachers. Mark tick for the things that float and mark cross for those that sink. In first column, things to be put in water. In second, I guessed before I did it. I saw when I did it. यह बहुत जरूरी चीज है कि करने से पहले आप क्या सोच रहे हैं वो सेकंड कॉलम में लिखिए, और जब आपने किया तब क्या हुआ वो थर्ड कॉलम में लिखिए। एंड डू इट ऑनेस्टली। पानी में हमें क्या क्या डालना है? एम्प्टी बोल, कटोरी, खाली कटोरी डालना है। क्या वो पानी में डूबेगी? गैस, राइट इन सेकंड कॉलम। और जब किया तब क्या हुआ? राइट इन थर्ड कॉलम। आफ्टर पुटिंग इन 6-7 स्मॉल पेबल्स वन बाय वन, धीरे धीरे एक एक करके उसमें 6-7 छोटे छोटे टुकड़े पत्थर डाले, तब गैस करिए कि क्या वो डूबेगी या नहीं। और जब आप डालने के बाद प्रैक्टिकली देखिए क्या होता है। आयरन नेल और पेन, मैच स्टिक, empty plastic water bottle with its lid closed, bottle half filled with water and bottle full of water. पहले गैस करिए कि क्या वह पानी में डूबेगी या सिंक हो जाएगी, सिंक हो जाएगी या फ्लोट हो जाएगी। आफ्टर एक्सपेरिमेंट, राइट इन द थर्ड कॉलम। एल्यूमिनियम फॉइल फ्रॉम मेडिसिन पैकिंग, जो दवाइयों का पैकेट आता है उसकी जो फॉइल उसमें से निकलती है उसको चेक करिए। ओपन एंड स्प्रेड आउट, उसको खोलिए और फैला लीजिए, फिर पानी पे रखिए, गैस करिए। प्रेसली टाइटली इनटू अ बॉल, उसकी एक बॉल बना लीजिए, उसको देखिए। पहले गैस करिए, फिर
एक्सपेरिमेंट करिए। फिर उसको एक कप की साइज, कप लाइक साइज शेप में उसको कन्वर्ट करिए, उस एल्यूमिनियम फाइल को, उस प्लास्टिक के कवर को जो मेडिसिन का है, एल्यूमिनियम फाइल का। फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करिए। सोप केक, soap cake on a small plastic plate, a piece of ice, quite interesting। आइस के पीस को पानी पे रखिए, क्या वो फ्लोट करती है, क्या वो फ्लोट नहीं करती है। एक्सपेरिमेंट करने से पहले आप क्या सोच रहे हैं और उसके बाद क्या होता है, अगर आप इन सबको करेंगे, यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स रिगार्डिंग इट। जब आप ये कर लेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। विल डू this fill in the blanks exercise, we'll do some magic, we'll do some other exercise. I hope children you all understood about the experiment with water, especially float and sink. So do all these experiments, but take care, don't do any experiment with fire in the kitchen. If you want to do experiment related to puri and oil, ask your mother. She will do for you. अगर आप किचन में आपके साथ कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो अकेले नहीं करिए, अपने घर में जो बड़े हैं उनके साथ वह एक्सपेरिमेंट करिए। सेफ रहिए, घर पे रहिए, खुश रहिए, और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्टडी करते रहिए। साई राम टू ऑल, थैंक यू।